there was a certain issue. I don't remember the issue. He said कि Sitaraman ji and RBI governor have a differing point of view on this. So how would you whose side would you support? कौन सही है इसमें से? I said, sir, I do not have any opinion on that because I'm not aware of this issue. I'm sorry for that. But I think Honorable Finance Minister must have consulted RBI governor because they are the stakeholders in the economy, and they all started laughing. I don't know why they were laughing. मतलब at one point of time, I thought that मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? And then since that moment, I could see a change in the tone of my interview. It changed drastically, I would say. Hi everyone. So today I welcome Mr. Amit Kumar who has recently cleared RBI Grade B 2024 exam. Welcome Amit. Thank you, sir. What an achievement यार, मतलब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो बहुत इंस्पायर होने वाले हैं. तो अमित झारखंड से हैं, बीटेक है. मैं इनके बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको. सबसे पहले ही हैज़ क्लियर्ड RBI Grade B एग्जामिनेशन विद जस्ट 3 months ऑफ प्रिपरेशन. यूपीएससी बैकग्राउंड था बट अकॉर्डिंग टू हिम इट डिडंट गिव हिम मच एडवांटेज, बट थोड़ा बहुत मिला है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सेकेंड थिंग इज कि यार ऐसा नहीं है कि बस किताब उठाई और एग्जाम हो गया. ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी एग्जाम्स इन सो मेनी ईयर्स. 3 साल से ये जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं भाई. तो बहुत सारे एग्जाम दिए, उसमें से कई छोटे लेवल नहीं बोलूंगा बट नॉट अप टू द लेवल ऑफ आरबीआई. इन्होंने एग्जाम किए भी, क्रैक ज्वाइन नहीं किए बिकॉज ही वांटेड टू मेक इट बिग. काफ़ी एग्जाम, अच्छे एग्जाम में ये एक डेड नंबर से भी रह गए हैं, तो उसकी पेन मैं समझ सकता हूँ. मतलब एक शायद गर्लफ्रेंड से जो ब्रेकअप होता है ना, उससे भी ज़्यादा होती है जो हमारा 1 नंबर से एग्ज़ाम रह जाता है. तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और इनके 3 महीने में जो एग्ज़ाम क्रैक करने का राज है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. सो अमित, माई फर्स्ट क्वेश्चन यार, मतलब इतना कुछ देखा, फेस किया, घर पे बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतने अच्छे कॉलेज से हैं. इज फ्रॉम IEST शिवपुर विच इज़ अ गुड कॉलेज. तो यार मतलब क्या मोटिवेशन कहाँ से आती थी यार अंदर से कि नहीं लगे रहना है, मतलब मैं तो छोड़ के भाग जाऊँ यार कि मेरे से नहीं होगा. Sir, one thing that builds the motivation is the need of life. What people want in life. I have always wanted personal growth. That is why I did not settle for the exams which were not at par with RBI. So personal growth has been something that I have been striving and which I will strive in future even after joining RBI. And apart from that, I think after a journey of this long, I think 3-4 years हो गए हैं since I left my last job in 2021. I think now when I see and I look back at my journey, I think each and every day of struggle, each and every tear that you spend, each and every muscle pain that you have, each and every drop of sweat that you have is worth it. Because now when I see the face of my parents, seeing with a sense of proud towards me, when I see at my journey, when I see that today you brought me here, it has been a dream of us to contact with our mentors, whom we have learnt anything from, whether it is through YouTube or paid courses, whatever it is. So I always wanted to meet them in person. Of course, we don't get opportunity this far, but today you are the one who is calling me. So that is itself speaks a lot about this journey and my achievement. Yes. So I think when we make it into this exam, when we go to the other side of the table, I think when we look back, everybody, whoever it is who has made it in this exam now or they will make it later, they will feel this thing that each and every day of struggle has been worth it. So I think that has been the biggest motivation till now. तो वो जो सारी पेन है, अब वो एक मतलब एक अच्छे नज़रिए से हमें याद आती है कि यार इट इज़ वर्थ इट. It is worth it. It is worth it. That is one line that I say everybody, whoever asks me about this exam or how do you feel, I don't feel happy, I don't feel satisfied. I just feel one thing, that everything has been worth it. मतलब I don't have any regrets of 3 years of preparation. जैसे कि अगर मैं corporate life में गया होता, I would have gone in some other field. I might have done wonders there. मैंने 3 साल कुछ नहीं किया. I had zero, because when it comes to exams, it is a binary game. Either it is 0 or 1. So I think till now it was 0. Just a PDF came, I saw my roll number, it became 1. So it's like switching. So I just switch, and now when I see, I think everything was worth it. Today many aspirants who call me, they are like कि सर बस 4 महीने हैं, 4 महीने में क्रैक करना है, किया जा सकता है, but everybody is like going for fast success. So how would you what would be your message on that? Do you agree with something like यार fast success बहुत easy है? Sir, I think fast success comes with twin disadvantages. First is that when we look for fast success, we look for shortcuts. That spoils your character. Like either you will look for piracy of the documents, or you will look for stealing and all, which we see in some exams. People try to steal and all.
So I think that is one reason. Second is slow success builds character, fast success builds ego. Oh. So when you get something faster, it will boost your ego कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. Why will I talk to you? Who are you? But when you, like, for if you take my case, I have seen so many failures that even when I have made it, I have a Telegram channel. When people connect with me, I think there are 400 500 people there now in last few days only, and now everybody message me personally and they ask me, and I never feel कि ये इसने क्या किया है, मैंने तो आरबीआई निकाला है, because I have seen कि कल मैं भी वहीं था. As I said, it is a binary game. He might be at zero now, but yesterday I was also there. So I think slow success builds character. When you understand that the person in front of you is also the one, a reflection of you a few years up the line. 2 साल पहले मैं वहीं था जहाँ आज वो है. मैं भी लोगों को कॉन्टेक्ट करता था जिनका हो गया है कि आप मुझे हेल्प कर दो. मैं काफ़ी मेंटर से कॉन्टेक्ट करता था. Though I did not have the luxury of taking a course, but I tried to reach to many people. Some of them helped me, some did not. So I think this, what you asked me, this character is developed only by when you see a long journey of struggle. So I think it is worth it. Matlab, you should not look for fast success. What a nice statement. Slow success builds character, fast success builds ego. भाई इसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए होंगे, मैं बता सकता हूँ. आई थिंक ही हैज़ वेरी नाइस थॉट्स एंड दैट इज़ व्हाट योर एटीट्यूड टेल्स अबाउट यू. आपने एडुटैप का कोर्स तो नहीं लिया था, मैं ये व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, बट ही टोल्ड मी दैट एडुटैप हैज़ नाइस अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सक्सेस. तो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो कंट्रीब्यूशन कैसे था, बिकॉज इनके पास हमारा पेड कोर्स नहीं था. Yes, sir. In this regard, some of my friends helped me. For example, they gave me the summary sheets of your management. That has been my single step solution. तो मुझे मिल गया था वो. For that, what I did, I made a consolidated notes, जिसको मैंने repeatedly पढ़ा, समझा अपने हिसाब से. I took most of the time in making that notes, because while making that notes, I was also understanding it. I did not spend much time in remembering it, because again, I had the paucity of time. I prepared for phase 2 only after phase 1, so I did not have that much time. And apart from that, I used the current affairs magazine you have. I think it is called Schemes tab and Reports tab. So my friend shared me that, and I took them as base material for making my notes. Although I supplemented it with other notes, but that was base material. And one thing that had helped me was the YouTube lectures of Kritika ma'am. वो RBI circulars वाले वीडियो बनाती है वो. And I think I have seen every video of hers, noted everything that she said is important, highlighted everything. Like I copied the entire slide on my notes. ऐसा टाइप का. मतलब that was my sole preparation of RBI circulars. And I think this was the major contribution in this exam. I think reports scheme और management और RBI circulars छोड़ के कुछ बचा ही क्या. करंट अफेयर्स ही तो आ रहा है एग्जाम. करंट अफेयर, हाँ बस वही है सर. नाइस. आई एम सो ग्लैड वी कुड बी ऑफ हेल्प. थैंक यू. लेकिन अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि यार 3 महीने में सक्सेस पाया, क्या राज है? एंड यू ऑल्सो सेड कि यूपीएससी प्रिपरेशन डिडंट गिव यू मच एडवांटेज. प्लीज एलेबोरेट ऑन दैट. Sir, I think UPSC preparation helps you in soft qualities. For example, you learn, you try to study for a longer hour. You learn to study for a longer hour. You have that perseverance. You have the ability to understand the things, grasp the things. You have better approach to writing answers. The soft qualities are given by UPSC. But when it comes to hard things, like some portion is directly coming in RBI, ऐसा तो होता ही नहीं है. Like only overlapping part is the static part of finance and ESI that is not asked in RBI. So there is no current affairs आ रहे हैं. Yes, factual आ रहे हैं. So there is no hard and fast intersection between the two exams. But the soft qualities that you get, it gives you advantage. Like it would have given me an advantage of a month or two. जो मैं ऐसे करता वो बच गया. Otherwise, no similarity between these exams, nothing whatsoever. You have to start afresh. The exam is totally new. Demand is totally new. Orientation of the exam is totally different. तो I think उतना एडवांटेज मिलता नहीं है. अब बाकी प्रिपरेशन की बात है सर, तो आई थिंक इफ यू स्टिक टू अ सर्टेन बेसिक सोर्स, मेक योर नोट्स, अंडरस्टैंड द नोट्स, and before making those notes, understand the basics. That is very important. So if I summarize my entire journey in this 3 months, I think the understanding I had a bit from UPSC background, a bit I took it after I entered this domain. Apart from understanding about the exam, about कैसा the exam. पेपर आता है. Yes sir. ठीक है, that is one. That Yes, is sir. point number 1. Yes sir. Understanding the exam. Secondly, the core demands of the examiner. What are they asking? Are they asking concepts? Are they asking facts? Are they asking both? That is the thing. Again, third thing is the filtering of information, because in this digital age we do not have paucity of resource. We have plenty, और वो जरूरत से ज़्यादा है. You have to filter. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सेम डॉक्यूमेंट में सेम लाइन में 2 वर्ड होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है.
should be able to figure out that thing. काफी बार तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि हम 2 घंटे सोर्सेज ही ढूंढते रहते Yes, हैं. वो FOMO आ जाता है सबका. फोमो आ जाता है कि इतना कुछ है, सारा कुछ देख लें, फिर देखेंगे कि क्या पढ़ना क्या है. पढ़ना है? Yes, उतने में शायद हम 2 एवरेज सोर्सेज पढ़ ही चुके पढ़ ही होते हैं. चुके होते हैं. Yes, sir, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिल्टरेशन की. गूगल में इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता ही नहीं लगता कि यार कहाँ से शुरू कहाँ से- करूं और क्या छोड़ूं. बिल्कुल सर. तो ये आपने सारा मास्टर किया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि 3 महीने में आपने Yes, sir. तैयारी की. और एक चीज मैं बताऊंगा सर, एक और चीज थी जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है आपकी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रीडिंग अ पर्टिकुलर पेज, it is giving me 80% of the information. Then for that 20% I'm reading an entire page, giving me the same amount of effort, same amount of time, same amount of dedication. उसका उतना मार्जिनल यूटिलिटी बनता नहीं है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इकोनॉमिक्स भी घुसा रहे हैं अब, देखो आप ये कितना पढ़ा है सर, तो थोड़ा घुसा दिला. इंटर रिलेट किया है. अच्छा, ये बताओ यार, मतलब यू सेड टोल्ड मी दैट मेनी एग्जाम्स लाइक एफकैट और अदर एग्जाम्स यू आर नॉट एबल टू क्लियर बाय स्मॉल मार्जिन्स. Yes, sir. तो कैसा फील होता था यार? मतलब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि एक अटेम्प्ट नहीं हो तो वो दे आर लाइक समटाइम्स, हालांकि मेहनत की हो एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर, दुख होता है, बट पीपल सडनली गिव अप कि पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है. सो हाउ डिड यू कोप अप विद सो मेनी फेलियर्स एंड you were unemployed also, you left a job that might have given you feeling of guilt कि मैंने क्या कर दिया और एग्जाम भी नहीं क्लियर हो रहा है. सर एक तो मुझे लगता है जितनी कंट्रीब्यूशन इसमें मेरी है उससे कहीं ज्यादा है दूसरे लोगों की. लाइक माय पेरेंट्स हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी. They had lot of expectations, lot of need of me in a good job, me being in a good job. Still, they helped me so much with that mental peace that you don't have to bother about anything. Just keep on studying. आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी हम देख लेंगे. They didn't give me any reason whatsoever to worry about anything apart from my studies. Some of my friends, like Kundan, Harkirat, I have good friends who have helped me in this journey, keeping me motivated, helping me in whatever way they can. उनकी contribution मुझसे काफ़ी ज़्यादा है. मेरी बात है सर, तो आई थिंक one is the thing that I have a good level of confidence, जो कि I have built over this time by clearing multiple exams. People ask me, why did you give this exams when you don't have to, when you didn't have to go into these exams? I think one reason is this only. It helped me show myself that yes, I am at least capable of this much. And this is very important to understand. Why do we lose confidence? Because we don't see success. And I always tell that if you are not getting a success in an exam of level 8, try for 7. Try for 6. If you are getting an exam of level 4, at least you are mentally free that 4 तो मिल ही जाएगा. अब उसके ऊपर देखना है. And I think giving an exam and clearing it gives you a lot of confidence. And over the years, I've cleared multiple exams like CDS, FCAT, CAPF, CGL, ICAR, AO. तो मुझे लगा कि मतलब इतना तो हो ही जाएगा मुझसे. Let's try for something better. नहीं हुआ तो I'll fall back to this. Fortunately हो गया RBI, तो it's like that. तो मतलब आपने मल्टीपल एग्जाम्स जो दिए, नाउ इन द हाइंडसाइट व्हेन यू एनालाइज दैट, वाज इट अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, या कुछ गलतियां भी हुई? इतने सारे एग्जाम दिए, शायद एक पे फोकस करते तो अभी 2 साल पहले ही शायद अच्छी जॉब लग गई होती. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन गिविंग एंड टैकलिंग मल्टीपल एग्जाम्स? सर आई थिंक इट इज़ अ टू एज स्वॉर्ड. कुछ फ़ायदे मिलते हैं, कुछ नुकसान. फ़ायदा जैसे आपने बोला कि अगर शायद मैंने एक एग्जाम पे फोकस किया होता तो मेरा हो गया होता. दैट इज़ वेरी करेक्ट सर. बट अगर उस साल नहीं हुआ होता देन आई वुड हैव वेस्टेड so many things in life. तो वो एक रिस्क है, आपको जो लेना पड़ता है. I didn't take that risk. Again, I had my set of obligations towards my parents, towards my family. I did not have the luxury to focus my entire year on one thing, stake my entire career on one exam. I did not have, very frankly. So I look into multiple exams. I would say advantage इसमें ये मिलता है कि you get to know diverse view, जो आपके थिंकिंग को काफ़ी ब्रॉड करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, आई थिंक देयर इज अ बिग चंक ऑफ preparing for other exams, UPSC, CGL, CAPF, that helped me study multiple things, take many outlook, which helped me. Apart from that, जो सबसे बड़ी नुकसान इसका होता है, सबसे बड़ा सर, कि आपका टाइम बढ़ जाता है, आपका अटेंशन बढ़ जाता है. एंड आई थिंक देयर इज नो 2 एग्जाम्स इन दिस कंट्री जिसका सेम सिलेबस हो. थोड़ा तो फर्क होता थोड़ा ही तो है. फर्क पड़ता ही है. अगर सिलेबस भी सेम हो तो ओरिएंटेशन Orientation हो जाता है. चेंज हो बिल्कुल जाती है. तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप आरबीआई और यूपीएससी को लीजिए, सेम ही सिलेबस है ऑलमोस्ट. मैनेजमेंट छोड़ दे, सिलेबस सेम ही है. क्वांट इंग्लिश वहाँ भी आते हैं, करंट अफेयर आता ही है, ईएसएफ, बट ओरिएंटेशन पूरा ही अलग है. तो फिर आपका अटेंशन बढ़ जाता है, आपका समय बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है. आई थिंक दैट इज अ रिस्क दैट यू हैव टू टेक. यू हैव टू चूज अ ट्रेड ऑफ कि कहाँ जाके आप लाइन ड्रॉ करोगे कि इतने एग्जाम्स मुझे देने, इतने नहीं देने. लाइक देयर आर मेनी एग्जाम्स. जैसे सेबी मैंने दिया था, आई थिंक लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने दिया था. आई क्लियर्ड प्री. फिर मेंस में उसमें कॉमर्स था. आई डिड नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन कॉमर्स. फिर भी मैंने कंपनीज पढ़ी. आई मिस्ड बाय अराउंड आई थिंक
3-4 मार्क्स मेरे रह गए थे, मैं चाहता तो उसको भी कंटिन्यू कर सकता था, 3-4 ही मार्क्स छूटा था, बट देन आई फेल्ट कि वहाँ जितना मैं उस 4 नंबर का जितना स्ट्रगल है उतने में मैं कुछ और कर लूंगा। अनफॉर्चुनेटली आई मेड इट टू आरबीआई। तो इट्स लाइक यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, अ ट्रेड ऑफ कि आपको कहाँ रुकना है। नाइस। तो भैया मतलब इसका क्लियर कट आंसर नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स देना फायदेमंद भी है, नुकसान भी दे सकता है। सो सी इफ यू आर एबल टू मैनेज इट, गो फॉर इट, अदरवाइज अपना इट इज फोकस एरिया कस्टमाइज सर, बना। मतलब हाँ आपके नीड के अनुसार है। मेरा ऑब्लिगेशन था कि मैं नहीं रुक सकता था, तो मैं नहीं रुका। बिल्कुल। किसी का है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि आप एक एग्जाम को 1 साल दे सकते हो, तो आप कर सकते हो। नाइस। गुड। चलो अब थोड़ा एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो 3 महीने में तो आपने तैयारी की, आपने बताया एग्जाम को अच्छे से समझना, कंटेंट को फिल्टर करना। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 फर्स्ट, quant reasoning, one of the two toughest areas which people are afraid of, and they are indeed very difficult, and this year cutoffs were very high also. Yes, sir. तो क्वांट रीजनिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? बीइंग एन इंजीनियर आई नो यू वुड बी गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, बट व्हाट वाज द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और व्हाट वुड बी एडवाइस कि यार ये चीज़ का ध्यान रखना तो क्वांट रीजनिंग मैनेज हो जाएगा? सर जैसा कि आपने बोला कि एडवांटेज थोड़ा मिलता है, आई हैव कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, हाँ। साइंस बैकग्राउंड रहने से मिलता है, आई वुड नॉट डिनाई दैट, बट आई थिंक द एग्जाम नीड्स मोर, मच मोर देन दैट। तो आई वुड से कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम इज द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना 40% वेटेज हो, 60% इज अबाउट सेलेक्टिंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज नॉट मोर देन 1 to 2% ऑफ पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर फेज 1 आर देयर टू स्कोर high in quant and reasoning to increase their cutoff. Everybody is there to just to qualify the cutoff in reasoning and हाँ, maths. कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, जीए में जीए और इंग्लिश में खींच देंगे। जी और इंग्लिश में खींच देंगे। हाँ वो सर, तो वो चीज़ है, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है। ऐसे मेरा स्ट्रेंथ जीए इंग्लिश में था, क्यूआर में था, क्वांट रीजनिंग में, बट इतना नहीं था कि मैं वहाँ पर रिस्क ले पाऊँ। वही चीज़ मार्जिनल यूटिलिटी सर, अगर यहाँ 1 नंबर के लिए जितना मेहनत करोगे उतने में आप 4 नंबर स्कोर कर लोगे इंग्लिश में, वो चीज़ है। तो उसमें मैंने क्या किया, आई टुक अपॉन एंड सेलेक्टेड फ्यू टॉपिक्स, जैसे कि सर बताते हैं क्वांट में कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। सेम रीजनिंग में सिलॉजिज्म वगैरह जो है, जो इजी टॉपिक्स है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट इतने आते हैं कि आपका कट ऑफ निकल जाएगा। आई कैपिटलाइज ऑन दोट। मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए, 4-5 ही दिए होंगे, बट वो मॉक टेस्ट मैंने कभी सॉल्व के लिए कोशिश नहीं किया। इनफैक्ट कई ऐसे मॉक टेस्ट है जो मैं बस देखता था क्वेश्चंस, मैं दे नहीं रहा हूँ टेस्ट कि मैं ये क्वेश्चन आता तो मैं ये क्वेश्चन करता। अटेम्प्ट करता। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन तो बनना ही है, बट कौन सा क्वेश्चन बनाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है 5 क्वेश्चन में 3 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो मैंने कभी पेपर में सॉल्व किया ही नहीं। आई टू सेलेक्ट क्वेश्चन कि हाँ ये करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, मैं वो नोट करता था, 3 नंबर क्वेश्चन करना है नहीं करना। बाद में आई टू सिट एंड सी कि 3 नंबर मैंने सेलेक्ट किया, क्यों किया, व्हाई डिड आई सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड नॉट आई सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। And I think that is very good strategy than rigorously just putting in efforts to study all the topics of reasoning and quant. वो उतना मतलब marginal utility उतना है नहीं सर, return of investment उतना नहीं है। I think if you do this selection काम हो जाता है सर, मतलब क्वालिफाई तो करना है। तो मतलब क्वेश्चन बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू फोकस ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन, ताकि उतने टाइम में आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपना रिटर्न, ताकि आप कट ऑफ क्लियर करो। अंतर आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है सर, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर कट ऑफ इज 67 मार्क्स, दिस एट 67.5 आई थिंक दिस ईयर, somebody is getting 68 and somebody is getting who is getting 108, what is the difference? Nothing. Right. तो आपके कितने मार्क्स थे फेज 1 में, इफ यू रिमेंबर? Sir, I do not remember exactly, but I think I cleared the cutoff only by 0.25. 0.25, अच्छा। तो क्वांट रीजनिंग में भी पॉइंटों से ही कट ऑफ क्लियर नहीं, हुआ? क्वांट में ज़्यादा था सर, मतलब आई वाज गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, कर लिया, बट दिस इज व्हाट आई फॉलोड। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले तो मैंने कर लिए वैसे। इंग्लिश तो somehow आई नो, आई मीन कर ली होगी, उसके लिए कोई खास आपको प्रिपरेशन नहीं चाहिए थी। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर फेज 1? सर फेज 1 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है सर आजकल मतलब इंटरचेंजेबल हो गया है, रिपोर्ट्स और स्कीम्स वो पूछते ही हैं फेज 1 में, मतलब। और विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड पीपल, लास्ट आई टोल्ड यू इन माय टेलीग्राम चैनल, मेनी पीपल आस्क्ड मी अबाउट फेज 1 ओनली, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं आउट हो जाते हैं। आई टेल देम वन थिंग दैट ऑफ लेट इफ यू सी आरपीआई एंड अदर एग्जाम्स आल्सो, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स टू लिटरल मीनिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस, वेयर यू नीड टू बी विजिलेंट अबाउट द थिंग्स। सोसाइटी में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, जस्ट रीडिंग अ मैगजीन विल नॉट हेल्प। आई थिंक आई स्ट्रांगली फील दिस, मतलब ऑफ लेट द एग्जाम्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लिटल मीनिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस। You see the scenario, what is going on, आपके आसपास क्या हो रहा है, be vigilant about it, that is important. You cannot risk your life or your career in one magazine. हाँ, what you can do is make one magazine as the source, compile it through your, मतलब उसको और छोटा कीजिए अपने नोट्स में, उसके बाद you supplement it, like for example you can read newspapers daily,
और यू कैन लिसन टू द न्यूज़पेपर कंपाइलेशन दैट कम इन यूट्यूब और मतलब कहीं से पढ़िए एंड बी न्यूज़. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल सर. लाइक सपोज देयर इज एनी न्यूज़, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ न्यू बैंकिंग रूल और समथिंग लाइक दैट. अभी कुछ आया एक नया लॉ. नाउ दिस न्यूज़ विल बी इन एटलीस्ट फॉर 10-15 days in newspaper. If you read it daily, it will build the subconscious mind. And in exam we don't have to recall the answer, we have to recognize the answer. So even if it is in your peripheral memory, in subconscious mind, वहाँ देख के हिट कर जाता है कि हाँ ये वाला होगा. तो आई थिंक दैट स्टडी इज वेरी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन वन करंट अफेयर सोर्स. तो जीए में मतलब जैसे स्कीम्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, आरबीआई नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आपने सारी चीज़ों की तैयारी की थी इनकी? आरबीआई नोटिफिकेशंस भी आप पढ़ के गए थे फेज़ 1 से पहले? नहीं सर, फेज 1 के पहले मैं बस स्कीम्स पढ़ा था, रिपोर्ट्स पढ़ा था मैंने. फेज 2 का पार्ट ठीक है. स्कीम्स और रिपोर्ट मैंने पढ़े, बाकी सब मैंने फेज 1 के बाद किए. और जीए में क्या स्कोर था आपका? सर आई डू नॉट रिमेंबर द स्कोर एग्जैक्टली, ठीक बट है. जीए में ठीक ठाक थे स्कोर. ठीक मतलब ठाक जीए में सर थोड़ा सा मुझे एडवांटेज मिला कि बिकॉज आई एम वेरी विजिलेंट अबाउट दीज थिंग्स. मतलब व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग आई विल लिसन टू न्यूज़, आई विल एटलीस्ट रीड न्यूज़पेपर और समथिंग. मतलब आई एम अ पर्सन हु रीड्स करंट अफेयर बाय चॉइस आउट ऑफ माई हॉबी ऑफ रीडिंग इट. मतलब मुझे जानना है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास. तो इन जनरल आई कीप सीइंग. अगर मैं यूट्यूब भी खोलूँ तो आई लिसन टू सम राज्यसभा डिबेट और ऐसा कुछ. तो बाई वर्च्यू ऑफ हैबिट आई हैव दैट जनरल नॉलेज. तो वो उसका काफ़ी हेल्प मिला मुझे. यार करंट अफेयर्स में ना एक और प्रॉब्लम है कि वास्ट तो हैं ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव लॉट ऑफ डेटा, और एग्जाम में डेटा भी पूछा जाता है. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि यार आप सिर्फ रेलेवेंट डेटा ही पढ़ रहे हो, इरेलेवेंट नहीं पढ़ रहे हो, बिकॉज सारा कुछ तो रिटेन नहीं होता है. तो व्हाट वाज योर प्रायोरिटी इन क्रैमिंग डेटा? व्हाट काइंड ऑफ डेटा? सर इफ़ यू सी ब्रॉडली दी, अगर मैं स्कीम और रिपोर्ट को, अगर मैं आपका क्वेश्चन को मेनली स्कीम रिपोर्ट की तरफ फोकस करूं और जो डेटा आते हैं जैसे जीडीपी का क्या परसेंटेज ग्रोथ रेट आ सकता है. इफ़ यू सी एनी ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज फोकस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब मोटा मोटा अगर देखिए उनका ओरिएंटेशन के एग्जाम का, दे विल फोकस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. रिपोर्ट्स क्या है? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अ कंपाइलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट का बायोडाटा. स्कीम्स क्या है? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. सो इफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, देयर द अप्रोच दे आर हैविंग इन करंट सिनेरियो, जैसे कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर. अगर आप ये समझो तो आपको एक ब्रॉड ट्रेंड समझ में आएगा कि क्या है गवर्नमेंट का भी और एग्जाम्स का भी. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरी चीज़ क्या है? जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, फॉर एग्जाम्पल बजट. सपोज वी टॉक ऑफ मनरेगा. मनरेगा में कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितना बजट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इफ यू गो टू द निटी ग्रिटीज, फॉर एग्जाम्पल कितने लोग काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये सब उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है. बट द इंपॉर्टेंट डेटा, फॉर एग्जाम्पल कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है, उतना देना ही है. कितना मिनिमम हाँ, वेज है, वो लीगल है, वो मतलब दैट इज एज पर लॉ, तो आपको पता होना चाहिए. तो जो लॉ से रिलेटेड है, फिर वैसा हो गया कितना वेज है, कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ रिसेंटली. जैसे कि मान लीजिए सपोज एक डेटा इतना पिछले लास्ट एक साल, मतलब बजट एलोकेशन इस साल इतना हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. तो जो ब्रॉड डेटा है वो पता होना चाहिए. जो छोटे डेटा है, यू शुड हैव अ ब्रॉड ट्रेंड अबाउट इट. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कितने लोगों ने एनरोल किया, तो यू शुड नॉट ओन द एग्जैक्ट डेटा. एक रफ आइडिया होना चाहिए इतने लाख लोग अप्लाई कर कि रहे हैं. 10 लाख हैं या 20 लाख हाँ, हैं, थोड़ा मतलब ब्रॉड लमसम आइडिया होना चाहिए सर. और वो क्वेश्चन आने भी नहीं एग्जाम में, बट जस्ट इन केस इट कम्स, आपको एक लमसम आइडिया होगा तो काम चल जाता है. एंड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम इन दी जीए सेक्शन? मतलब 80 क्वेश्चन 25 मिनट, इट्स ऑलवेज अ कंसर्न. Yes. और इसमें मतलब सिलेक्शन करना भी कि क्या क्या करना है 25 मिनट्स फॉर 80 क्वेश्चंस, बिकॉज इवन मेनी क्वेश्चंस आर बिग. Yes, sir. तो वो कैसे किया आपने? कुछ आइट्रेशंस बनाई कि पहले छोटे करूंगा फिर बड़े करूंगा, या एक फ्लो में ही किए सारे? सर मैंने मॉक टेस्ट में ट्राई किया था इटरेशन का, मुझसे हो नहीं पाया ऑनेस्टली. हाँ. मैं समझ में आ गया कि मुझसे एक ही राउंड होना है, हाँ. मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा. तो मैंने कोशिश की कि पढ़ते चलो. हाँ. हुआ वो ठीक, नहीं हुआ छोड़ते चलो, वापस नहीं आ पाऊंगा मैं और मैं आ भी नहीं पाया सर. बिकॉज ऑफ लेट दे आर शिफ्टिंग फॉर स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब वो सिंगल लाइनर से स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी टाइप ABCD में आ गए हैं वो. तो मुझे समझ में आ गया होना नहीं है. देन आई फोकस, मैं देखता था सबसे पहले कि साइज किससे छोटा है, उसमें बहुत फोकस से पढ़ता था. चाहिए जहाँ दिखा साइज बड़ा है तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता था कि पढ़ना पड़ेगा. बट अगेन आई यूज्ड टू रीड इट. फर्स्ट लाइन पढ़ा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्किप, नेक्स्ट लाइन. इसको मैंने मॉक टेस्ट में ट्राई किया सर. मतलब सारे मॉक टेस्ट में मैंने ये ट्राई किया. वही अगेन यहाँ भी वही चीज़ है सर, क्वेश्चन सिलेक्शन, आपको हिट कहाँ करना है. तो मैंने मॉक टेस्ट में काफ़ी प्रैक्टिस की थी कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है. तो कितना एक अटेम्प्ट होना चाहिए जीए सेक्शन में आपके हिसाब से? जैसा ट्रेंड चल रहा है सर, मतलब आई वुड से 40 तो मिनिमम चाहिए, ताकि आपके 5-6 गलत भी गिवन हो दैट तो. यू आर गुड इन अदर थिंग्स ऑल्सो. हाँ, ऐसा हाँ. नहीं कि 40 वहाँ बनाए यहाँ पर लटक के आगे, वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ. नाइस. तो चलो दैट वाज अबाउट फेज 1. तो फेज 2 की बात करते हैं अब. फेज 2 में मतलब एक मेन स्ट्रगल रहता है लोगों का, फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, कैसे करेंगे? सो आपका क्या व्यू है, मतलब कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड
से कुछ हेल्प मिलती है, या पेपर का पैटर्न ऐसा है दैट इट इज सो जनरल दैट एनीबॉडी कैन डू इट? सर अगर हेल्प की बात बोले तो आपने कुछ भी पास में पढ़ा है तो हेल्प करता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म, बट आई थिंक जितना डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर जनरिक परस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के लिए दे हैव DPR, हम्म, तो दे ऑल्सो नो कि दे हैव टू आस्क जनरल क्वेश्चंस इन दिस। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो बस रिपोर्ट्स या स्कीम्स उठाए, डेटा देखा उन्होंने, इकोनॉमिक्स का GDP इतना हो रहा है और बस रट लिए उसको या याद कर लिए, दे आर रिलाइंग ऑन करंट अफेयर्स। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि करंट अफेयर्स को समझने के लिए और वहाँ पर क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको स्टैटिक भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हो कि इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ इतना है, इफ यू आर कंसिडरिंग दैट, आपको वो पढ़ तो लिया आपने कि सिंगापुर के साथ इतना है, आपको उसका मतलब नहीं पता है, वहाँ वो क्वेश्चन घुमा देंगे, फिर आपसे वो बनेगा नहीं। तो इट इज़ फार इंपॉर्टेंट कि आप एक बार जब व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपरेशन, आप 20 दिन टाइम दीजिए और स्टैटिक को समझिए। एंड आई थिंक जितना इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आता है RBI में, आपको स्टैटिक पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं सर, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है। तो आप अगर मुझे लगता है आप 10 दिन भी दोगे तो पूरा इकोनॉमिक्स, और 10 दिन दोगे पूरा आई फाइनेंस थिंक खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये GDP वगैरह ये सब, GDP, ये यही सब है। 4-5 चीजें अगर आपको आती हैं, यू अंडरस्टैंड द एंटायर इकोनॉमिक्स, यू कैन एक्सप्लेन यस सर, एवरीथिंग आउट ऑफ एवरीथिंग दैट। उतना ही करना है सर। फाइनेंस में भी वही चीज़ है, अगर आप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड ऑल, तो हो जाता है सर। मतलब आपको स्टैटिक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जस्ट टू सेव ऑन दोज 10 डेज वी रिस्क एंटायर प्रिपरेशन। उससे बेटर है कि आप 10 दिन दे दो, अच्छा क्लियर कर लो, ताकि जब करंट अफेयर्स आए तो आप उसको रिलेट भी कर पाओ, फिर याद करने में भी आसानी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बार RBI ने इंट्रोड्यूस किया है कॉमर्स वाला सेक्शन, बैलेंस शीट। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया वो पार्ट को, आई लेफ्ट इट। मैंने एक बार मैंने पढ़ा पूरा, फिर मैंने छोड़ दिया। बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैंने UPSC में उसका स्टैटिक पढ़ा था, मुझे समझने में ईजी हुआ, पढ़ना भी ईजी हुआ। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, रटना बहुत कम पड़ता है। आई थिंक इट रियली हेल्प्स। तो फेज 2 की प्रिपरेशन भी आपने, यू जस्ट डिड इट इन 1 मंथ? हाँ सर, मेनली मतलब रिपोर्ट्स और स्कीम्स मैंने पहले की थी, बाकी पूरा मैंने 1 मंथ में तो RBI notifications, entire finance management that you would have read किया। was वो during that रिस्क 1 मैनेजमेंट month? वाला पार्ट और क्या क्या था वो सब कुछ सर। कितने घंटे पढ़ते थे यार आप? मैं तो सर उस समय बस पढ़ता ही था सर, ऑनेस्टली। मतलब फेज 1 से फेज 2 के बीच में आप 15-20 घंटे पढ़ रहे थे ऑलमोस्ट सर, मतलब उतना हो ही ऑलमोस्ट? गया। तो कभी ऐसा नहीं लगा यार कि अगर नहीं हुआ तो सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी? सर वो लगता था, बट अगेन वही चीज़ कि यहाँ नहीं होगा तो इस पढ़ाई को कहीं उसका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा अच्छा जगह। मतलब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते नहीं नहीं है? सर, जहाँ नेगेटिव आए सर, मैं बस यूट्यूब को मैं समझ आता था कि अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आई यूज टू ओपन यूट्यूब एंड सी सम, मतलब जैसे किसी के वीडियो देख ले, RBI के किसी के, तो क्या फिर फोकस पूरा वीडियो सुनने में और वहाँ सुनने में चला जाता था, फिर दिमाग में थॉट्स नहीं आते थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत FM की बात करते हैं। मैनेजमेंट से शुरू करूँगा। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। यस काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर रट्टा नहीं लग रहा है, सब कुछ सिमिलर लग रहा है। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? और क्या सारा मैनेजमेंट पढ़ के गए थे आप? सर, फॉर दैट आई यूज्ड योर समरी शीट्स। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने मैनेजमेंट का सिलेबस एक बार देखा था, आफ्टर दैट डिड नॉट फॉलो। मुझे देख के लगा आपने दिया सब कुछ, फिर मैं भूल गया सिलेबस क्या, PYQ कुछ नहीं। फर्स्ट आई रीड द एंटायर समरी शीट। मैंने कुछ 7-8 पेज के नोट्स बनाए थे उससे, बस। दैट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपके नोट्स का सारा डेटा मेरा उसमें था, एवरीथिंग जो जरूरत है। वो एक चीज़ है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये पूछना काफ़ी फैक्चुअल, जैसे आपने भी वीडियो में बताया कि FM में 70-80 तो स्कोर कर ही लोगे आप, बट दिस टाइम RBI वाज लाइक मैं तो नहीं करने दूंगा, जिसको जो करना है कर ले। पेपर में जो क्वेश्चन है काफ़ी मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन बेस्ड है और फाइनेंस में भी करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा। तो मुझे लगता है सर यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी ने थोड़ा हेल्प किया। मतलब आई एम अ पर्सन हु इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो 7-8 दिन में मैंने 7 या 8 दिन, मुझे 1 वीक लगा होगा मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट करने में। मुझसे पूरा रट्टा नहीं हो पाया, वेरी फ्रैंकली, बट मैंने समझा अच्छे से, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि मैं लिखता हूँ बहुत धीरे धीरे, नोट्स में बहुत धीरे बनाता हूँ, मैं समझता चलता हूँ, तो नहीं समझूंगा उसको नहीं लिखूंगा, ताकि बाद में मुझे मेहनत न करना पड़े। तो वो मतलब अगर इस बार क्वेश्चन वो रट्टाफिकेशन बेस्ड आता हर साल की तरह, तो मेरा नहीं होना था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जस्ट बिकॉज पेपर वॉज एनालिटिकल, इट हेल्प मी, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप की थी। तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू। और वही बात है, जैसे बाद में जब फेज 2 दे के आया मैं, फिर मैं पेपर देख रहा था, तो मुझे लगा था कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, एक जैसे एक कोई पाथ गोल थ्योरी, कुछ किसी का ने पूछा था नाम क्या है, मुझे याद नहीं था, क्योंकि इट इज इजीएस्ट क्वेश्चन, बट मुझे याद नहीं था। पर बाद में मैं जब देख रहा था, मुझे लगा था कि ये याद हो सकता था, क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रक्चर था, वो अंडरस्टैंडिंग थी। फिर क्या, किसी का भी थ्योरी समझने को टाइम नहीं लगेगा। इफ देयर इज समथिंग टेलिंग समथिंग अबाउट मोटिवेशन और मैस्लो नीड्स जो भी हैं, तो अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है एक, तो आपको याद हो जाएगा कि किसने क्या दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम नहीं है सर। अगर आप सारे टॉपिक्स देखो तो मुश्किल 7-8 5-6 नाम्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो ट्रिक बना के हो जाता है। जैसे कि एक उसमें पाथ गोल थ्योरी है, जो सर रॉबर्ट हाउस किसी ने दिया है,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने उसमें ट्रिक बनाया था कि पाथ कहाँ जाता है, हाउस की ओर, तो रॉबर्ट हाउस। मतलब काइंड ऑफ यू हैव टू डू समथिंग अगेन, एड हॉक स्ट्रेटजी फॉर लिमिटेड टाइम। तो उस तरह से मैंने किया सर, तो हो गया वो। नहीं, नाइस। और जब आप मैनेजमेंट या फाइनेंस पढ़ते थे, सो वाज देयर समथिंग इन योर माइंड कि यार ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे पढ़ूंगा, ये नोट्स बना लिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आई हैव टू राइट लेंदी आंसर्स, तो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी या बस एक अंडरस्टैंडिंग कर ली और लगा कि यार अगर एग्जाम में पूछेंगे सो आई वुड राइट इन माय ओन वर्ड्स एंड दैट वुड बी इट? सर आई थिंक डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं कभी बॉदर नहीं किया। आई जस्ट लाइक फॉर मी आई हैव वर्कड सो मच ऑन आंसर राइटिंग फॉर माय यूपीएससी एंड माय आईसीएआर एग्जाम्स। उनका पैटर्न लगभग सेम था मेंस का। तो आई थिंक आई हैव फॉर देम आई हैव वर्कड सो मच that my answer writing is very good. Like if there is a question, I know some data about it, I'll write a very good answer. बाकी पॉइंट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो दिस आई न्यू, आई वाज ओनली स्टडिंग फॉर ऑब्जेक्टिव। और एग्जाम में मैंने एक चीज़ की थी जो कि बहुत यूनिक थी, मुझे कहीं मिली नहीं, बट वो मेरे लिए काम किया उसने। मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा एक टॉपिक, इस पर आया था कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम या कुछ आया था, मुझे याद तो नहीं है। मैं रट्टा फिक्सा नहीं किया था, मुझे वो भी याद नहीं था अच्छे से। मतलब इतना कम मैं रट्टा करके गया था मैनेजमेंट का, मुझे याद नहीं था। व्हाट आई डिड कि जैसे उन्होंने पूछा कि कोई एक क्वेश्चन है कोई भी, उन्होंने दिया कि इसमें कितने तरह के हैं, कितने पॉइंट्स है, उसमें 3-4 पॉइंट है, मैंने लिखे 3-4 पॉइंट लिख दिया मैंने। फिर मैंने देखा कि वर्ड लिमिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन आई गोइज टू गो बैक टू फर्स्ट लाइन, उसमें एक और लाइन ऐड किया, सब में एक लाइन ऐड किया, देखा वर्ड काउंटर नहीं हो रहा है, मैंने सब में एक एग्जाम्पल ऐड किए, हुआ हो गया। ऐसे करके मैंने किया और वो मतलब हो गया। तो अगेन सर, मतलब पॉजिटिव ऑफ टाइम में आप एडहॉक स्ट्रेटजी अपनाते हो, तो मैंने वही ठीक है, ये तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता, हमने ऐसी ट्रिक अपनाई, बट हाउ डू यू डू वैल्यू एडिशन इन योर आंसर सो दैट एग्जामिनर फील्स कि यार इस बंदे ने अच्छा लिखा है? व्हाट वाज दैट ट्रिक? सर आई थिंक फॉर दैट लाइक इफ अगर आप यूट्यूब देखें, मतलब उसमें जो कंपाइलेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल जो बजट स्पीच का कंपाइलेशन आता है, या फिर अगर आप पढ़ भी लें उसको पीडीएफ पीआईबी वगैरह में आता है, और फिर से मान लीजिए कोई बड़े रिपोर्ट्स है, अच्छे रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट्स का जो डेटा होता है, आई थिंक दैट दे आर वेरी गुड। मतलब इवन इफ यू सी, जैसे कि इस बार सीतारमन जी लेके आई थी बजट, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से की वर्ड्स यूज किए थे। आई थिंक अगर आप उसको पुश करो अपने आंसर्स में, तो दे बिकम वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं देखूँ सर, वैल्यू एडिशन, जैसे आपने बोला वैल्यू एडिशन, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत नया कुछ लिखना है, आपको 4-5 अच्छे डेटा डालने हैं एंड योर आंसर बिकम्स बेटर। तो वो 4-5 डेटा, मुझे लगता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप इतना रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, आप इतने स्किल्स पढ़ रहे हो, हमें वही तो डालना है सर। Maybe you can make topic wise 5 points on everything. हाँ, 5 points on health, 5 points on education, 5 points on infrastructure, and you can just put in your answers in some context in बिल्कुल that. सर। जैसे मेरे Nice. सर क्या एडवांटेज है सर, कि मेरे आंसर्स ऑटोमेटिकली फ्लो जाते हैं, तो मुझे वैल्यूएशन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। मुझे कोई ना कोई, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे एक ना एक डेटा उसमें याद आ जाएगा, एक ना एक रिपोर्ट कमेटी कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। तो ये एक एडवांटेज था मेरे साथ। बट आपका नहीं है, तो अगर वही चीज़ है, जैसे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है सोशल जस्टिस में, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक्स लो, ईएसआई, हेल्थ हो गया, हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, गिने चुने टॉपिक्स, विमेन हो गए, Urbanization, वल्नरेबल migration. सेक्शन हो गए, बस वही। उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल ही जाएगा। एक तो कमेटी के नाम याद करो, एक दो डेटा, एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, बस हो गया, उतना ही करना है सर। स्मार्ट ट्रिक है, बहुत बार हम भी बता चुके हैं भाई, टॉपर बता रहे हैं तो सुन लो। ठीक है, ईएसआई में आपने पहले बोला कि स्टैटिक तो भैया पढ़ के जाना, काफ़ी लोग सिर्फ करंट अफेयर्स में घुस जाते हैं, तो स्टैटिक ज़रूर पढ़ लेना। करंट अफेयर हैवी पेपर है, वही स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स आती है। हमने स्कीम्स को थोड़ा सा टच किया था पहले, बट अब स्कीम्स या रिपोर्ट्स दोनों की बात करूँ तो बहुत सारी हैं। वाज देयर एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि यार ये वाली स्कीम्स पढ़नी है या सिर्फ यही वाली रिपोर्ट्स पढ़नी है? बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतनी है कि ओवरलोड के कारण दिमाग फटने लगता है और फिर लगता है कि नहीं होगा। तो आपने कैसे मैनेज किया? सर थोड़ा सेलेक्टिव तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक स्कीम वन पेज वाला सिस्टम फॉलो किया। द एंटायर डेटा अबाउट अ स्कीम शुड कम इन वन पेज। उससे बाहर ना मैं कुछ पढ़ूंगा और ना उससे बाहर मुझे मतलब हो पाएगा मुझसे। और मैंने इतना लिखा था उसमें कि नथिंग फॉर अ स्कीम विल बी लेफ्ट आउट ऑफ दैट। तो होता क्या है सर, जैसे अगर आपको स्कीम चुनना है, तो यू हैव टू जस्ट सी कि विच स्कीम्स आर इम्पैक्टिंग द ब्रॉडर पब्लिक, मैक्सिमम सिटीजन ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बहुत रोल नहीं है उसमें सिटीजन का। बट इफ यू टेक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एवरीवन इज इंक्लूडेड, लाइक उनका इम्पैक्ट हर जगह होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शन के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन वल्नरेबल सेक्शन के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उतना नहीं है लेकिन है, हाफ इम्पैक्ट है तो हाफ इंपॉर्टेंट है वो। इस तरह से मैंने प्रायोरिटाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इम्पैक्टिंग द सिटीजन, वो जिस लेवल पे इम्पैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस रहेगा एग्जाम के लिए। जो स्कीम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। जैसे जैसे इम्पैक्ट कम होता जाएगा सिटीजन पे, उतना कम होता जाएगा। बस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग दी स्कीम्स, कितना इम्पैक्ट सिटीजन पे है, तो निर्मला ताई जी की स्कीम्स हमें सारी पढ़ लेनी पढ़नी चाहिए। पड़ेगी सर, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट आगे जाके भी शायद काम आएगी आरबीआई बिल्कुल में। सर। और कोई आप टिप देना चाहें हाँ सर, रिपोर्ट्स आंसर की राइटिंग के ऊपर? मैं जैसे टाइम कैसे मैनेज करना है, या फिर इंटरफेस में भी मैंने सुना है कि काफ़ी गड़बड़ रहती है वहाँ पे।
So can you share your experience? सर फॉर दैट आई विल से इंटरफेस के लिए सबसे बढ़िया उपाय है सर, आप नोटपैड लीजिए और नोटपैड को भी फुल स्क्रीन में नहीं, हाफ स्क्रीन में, मतलब थोड़े दूर तक कीजिए ताकि वो स्क्रॉल होता रहे दाएं बाएं, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल. इसमें दो फायदे होते हैं, एक आपको इंटरफेस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरा कि इसमें एरर हाईलाइट नहीं होते हैं. तो ये नोटपैड वाज वेरी गुड थिंग. दिस इज वन थिंग आई डिड फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस. आई वॉज गुड विथ इंग्लिश एंड राइटिंग, बट टाइपिंग का प्रैक्टिस के लिए मैंने ये किया. और इसमें पूरा वो मतलब जो आपने बोला विंडो का इंटरेक्शन, विंडो का दिक्कत होता है, वो सारा सॉर्ट आप प्रैक्टिस कर लोगे पहले. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो आपने पूछा था कि रिपोर्ट कैसे सेलेक्ट करना है, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड बिग बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, यूएन एटसेट्रा, उनके रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. उनके भी रिपोर्ट में सर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मान लीजिए वो मान लीजिए कोई शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर रिपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर उसे उसमें इंडिया को अच्छे रेट में दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जो है उसमें इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया है अभी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर वो जनरल लॉजिस्टिक रहता है तो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज इंडिया हैज इंप्रूव समथिंग इन दैट, देख वो रहे हैं इंपॉर्टेंट भाई, बड़े मतलब फाड़ू पॉइंट बता रहे हैं. तो रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई यस, और नीति आयोग एंड ऑल. नीति आयोग. टॉपिक जो होने चाहिए वो अगेन इम्पैक्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए, एक जनरल इम्पैक्ट होना चाहिए. और तीसरा, रिपोर्ट्स लाइक लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, हमें लगेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इंडिया ने उसमें कुछ फाड़ा है बड़ा, हाँ. वो इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं आप, इनको ज़रूर नोट करें. इसे इसमें मैं एग्जांपल दूंगा सर. अभी एक कोई स्कीम आया था, आई थिंक कोई एक रिपोर्ट आया था जिसमें इसमें इंडिया ने काफ़ी छलांग लगाई है, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्टली. जैसे वो आप इन जनरल देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इंडिया ने इंप्रूव किया है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और वो चीज़, ये निटिग्रिटीज है जो आपको पकड़नी पड़ेगी एग्जाम में, जो आपका टाइम काफ़ी बचा देता है. चलिए अभी इंटरव्यू के बेस्ट पार्ट पे आते हैं, क्योंकि इनका इंटरव्यू आरबीआई में जो हुआ, ठीक है. तो इस इंटरव्यू में हम इनके इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन्होंने आरबीआई में दिया. बहुत ही अच्छा था. आई होप जैसे इन्होंने मुझे बताया था आपको भी बता पाएँ. तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा यार, इंटरव्यू के बारे में जो भी आपको याद है आप बस बोलो, मैं बीच में इंटरव्यू नहीं करूंगा कि क्या क्या हुआ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट नो स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो. सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितना मैं डर के गया था, इट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन दैट. मतलब इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम. इसका इंटरव्यू पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है. इफ यू सी अगेन, आई हैड अ पॉजिटिव ऑफ टाइम बिकॉज मेरा ICAR का लेटर आया था आई थिंक 18th नवंबर को, 19th नवंबर को, एंड आई हैड माई इंटरव्यू ऑन सेकंड डे 3rd दिसंबर. तो 10-15 दिन लगभग मेरे पास थे, 12-15 दिन. और उसमें भी मुझे अब उनको सर्टिफिकेट भेजने थे, अपना मेडिकल करवाना था जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो मुझे लगता है 25-26 तक उसी में चला गया. आई हैड 5 odd days लेफ्ट फॉर माई इंटरव्यू. यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है. मैंने बायोडाटा फॉर्म भरा था, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है. फिर मैंने 1-2 जगह मॉक दिए, मैंने आपसे भी गाइडेंस लिया था, तो आपने बताया. फिर मुझे समझ में आ गया कि ये करना पड़ता है एक बेसिक इंटरव्यू में, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी टाइम हो गया. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये ना रात रात को पढ़ते थे, और एक दिन मैंने इनका गाइडेंस सेशन था, मैंने बोला भाई मैं तो सुबह ही अवेलेबल हूँ, उसके बाद तो बिजी हूँ. तो ये 7 बजे कॉल में आए थे, मतलब मेरे साथ जूम कॉल पे, और आँखें इनकी बड़ी बड़ी थी. तो मैंने शायद इनसे पूछा भी था, मुझे पक्का याद नहीं है, कि भाई आप रात को सोए नहीं क्या, थोड़ा टेंशन में लग रहे हो. तो मतलब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं भैया, रात को बंदा पढ़ रहा है, फिर सुबह जल्दी उठना है तो उठा. तो हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए. मतलब मोर पावर टू हिम फॉर हिज हार्ड वर्क. थैंक यू सर. चलिए कंटिन्यू विद योर इंटरव्यू. तो वही जैसे आपने बोला सर कि कई बार आपको चीज़ें मिलती हैं, बट यू शुड हैव दैट मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रैबिंग इट. ऐसे अगर मैं उस दिन बोल देता कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो शायद आपने फिर टाइम नहीं दे पाता. नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू, बट बिकॉज आपके पास है नहीं उतना समय सबके लिए. आपको और भी उस समय स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया होगा, आपके अपने कोर्सेज वालों भी. बट मुझे जो भी टाइम मिला, जहाँ भी आपने बोला कि 7 बजे सुबह, चलो ठीक है, एक दिन की बात है, कर लेते हैं. तो आई लिटरली डिड नॉट स्लीप दैट डे. तो मतलब मैंने देखा आपके पॉइंट्स में काफ़ी नोट किए मैंने, और भी जहाँ मैंने मॉक टेस्ट दिए सब जगह नोट किए. फिर आई हैड अ ब्रॉड आइडिया कि इतना करना पड़ता है, जो सबने बोला मुझे करना है. फिर बहुत लोग बोलते हैं कि यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर डेफ, जो कि मुझसे नहीं हो पाता. 5 दिन में आप नहीं कर सकते हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. मैंने क्या सोचा कि दे विल नॉट आस्क मी निटिग्रिटीज. फॉर एग्जांपल, इफ माय बैकग्राउंड इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दे विल नॉट आस्क मी कि डिजिटल एनालॉग, एक ब्रॉडली वो पूछ सकते हैं, बट डिजिटल में कितना सिग्नल जाता है ये सब वो नहीं पूछेंगे. तो आई टुक अ ब्रॉड आइडिया. से मेरा अगर मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मुझे अगर वो देखना रिवाइज करना है, तो आई विल नॉट गो टू डिटेल्स. मैं एक यूट्यूब में वीडियो खोलूंगा, समरी ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, समरी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पढ़ लिया मैंने, हो गया. उतना ही पूछेंगे वो. दे जस्ट वांट टू चेक कि आपने कुछ सिखाया नहीं. वेरी फ्रैंक. वही सेम चीज़ आप कीजिए अपने जो आपका एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड रहा है उसमें. सर एक बेसिक आइडिया ले लीजिए. फिर मेरा हॉबी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उसमें मैंने थोड़ा सा देखा, बट उतना टाइम में नहीं मिला, तो हो नहीं पाया. मैंने वेंट टू द इंटरव्यू. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑनरेबल चेयरमैन सर आस्क्ड मी वाज, व्हाट वाज योर ऑप्शनल इन UPSC? आई सेड सर सोशियोलॉजी. At one point of time, I thought कि how did he come to know that I was preparing for UPSC? But maybe उनको आइडिया लग गया होगा, they are experts in this. तो I said sir sociology.
And then he asked, okay, compare and contrast the exams of UPSC and RBI. Huh. How do you see those exams? Which is tougher? People say UPSC is tougher. Do you think so? And I said him, sir, it's like comparing apple to oranges, two things which cannot be compared. The demand of the exam is different. The need of the institutions are different. A UPSC recruits candidate for a different profile. RBI needs for different profile. The exam is different. The nature of work is different. That is why the exam scenario will be totally different. So when it comes to competitiveness and difficulty, I think they are at par. When it comes to syllabus, तो difference है. Syllabus of UPSC is bigger than RBI, but when it comes to difficulty level, because of the selection ratio and the type of candidates that apply for this, the quality of the students that apply, I think they are at par with each other. So he seemed kind of satisfied. I didn't get any idea. It's a nice answer in my view. Yes sir. तो उसके बाद फिर इट वेंट ऑन. देन द नेक्स्ट पैनलिस्ट मेंबर आस्क्ड मी, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू. तो पहला इंटरव्यू था मेरा दिन का, तो एवरीबॉडी वाज लाइक इन नॉर्मल मोड कि ठीक है घर से आए हैं वो कर रहे हैं. आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि उन्होंने पूछा बहुत सारे आरबीआई के बारे में, फिर जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, आरबीआई कैसे है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें पूछी उन्होंने. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि विच डिपार्टमेंट वुड यू ऑप्ट फॉर. आई सेड सर ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वली अपीलिंग टू मी. As far as I could get to know about different departments, they were equally appealing. But if given the opportunity, I would like to work for fintech department. Then he said, why? I said, sir, it aligns with my educational background. मेरा machine learning का background रहा है. And apart from that, technology is something that always appeals to me. So I would like to work for that. Then he asked me on fintech क्या काम हुआ. ऐसे उस समय RBI का एक आया था म्यूल हंटर AI का जो आया था म्यूल अकाउंट्स के लिए, तो वो समय मैंने बताया. तो ठीक है. After that, मैम asked me about forex. तो वो चला काफ़ी देर. Then one of the members asked me, okay, tell me one thing. There was a certain issue, I don't remember the issue. He said कि Sitaraman ji and RBI governor have a differing point of view on this. So how would you, whose side would you support? कौन सही है इसमें से? I said, sir, I do not have any opinion on that because I'm not aware of this issue. I'm sorry for that. But I think Honorable Finance Minister must have considered RBI governor because they are the stakeholders in the economy. And they all started laughing. I don't know why they were laughing. At one point of time, I thought that मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? Then I tried to explain again कि sir, मतलब they will consult because Sitaraman ji is not expert in finance, so she will take help. And the most expert person in this is the RBI. So they must have consulted it. And then they started laughing and वो हंसते रहे 30 सेकंड तक. And then since that moment I could see a change in the tone of my interview. It changed drastically, I would say. उसके बाद चेयरमैन सर वाज वेरी कॉर्डियल टू मी. मतलब ही वाज गिविंग मी टाइम्स टू आंसर. मेनी टाइम्स इट हैपेंड इन 3-4 क्वेश्चंस वेयर ही आस्क्ड मी समथिंग. आई वेरी फ्रैंकली सेड सर आई डोंट नो. Then he said, no, I know you can answer this question and I'll give you time. I'm waiting for 2 minutes, you answer this question. For example, he asked me ki tell me a kind of inflation that RBI cannot control. You tell me कि कैसे कंट्रोल नहीं कर, किस टाइप का इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है. देन आई सेड सर, मतलब आई वाज सो फियरफुल कि सब हंस रहे हैं. आई थॉट कि पता नहीं क्या बोल दिया मैंने. आई सेड सर आई डोंट नो. देन ही सेड आई नो यू कैन आंसर, आई एम गिविंग यू 2 minutes. देन आई थॉट आई सेड अगेन सर आई डोंट नो. ही सेड नो, यू टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 more minutes. Then I said supply side inflation. Then he said okay, good. Then he okay, give me one more reason, one more type of situation. Then again I said I don't know. He again gave me time. Then I said sir, international inflation that Sitaraman ji was calling that imported inflation that RBI cannot control. तो ये चलता रहा सर. And after that one of the members asked me about my this hobby. My hobby was brainstorming on rational issues. So he asked me कि okay, tell me last issue you have brainstormed. I said sir, it's the increasing role of women in elections. Then he asked ki so कैसे how can you justify that? I said sir, one is the voter turnout ratio as the data given by election commission, and second is the schemes that are being formulated by both center and states are inclined towards women. For example, we had elections in Lok Sabha. I had election in my own state Jharkhand. तो जैसे लाडली बहना स्कीम वगैरह आई थी, तो मैंने बताया सर ऐसे. Then they got really aggressive कि so you want to say that women are easier to bribe? I think they were checking my confidence and all कि मैं कितना हैंडल कर पाता हूँ प्रेशर को. I said sir, it's not about bribing. I think in the previous generation of ours, most of the breadwinners, including now also, most of the breadwinners are men. So if they earn 1 or 2,000 rupees extra, it will not have that marginal utility for them because they are already earning in thousands. But a woman who is not earning anything, any increase in that will be an increase of infinite percent. So it will boost her bargaining power in the home. That yes, I am also earning something, so I'll also have my say in the decision making of the house. I think that is very good. Very good answer. Very good answer. Thank you so much. So मतलब then they were like look like impressed as you are impressed right now. Then it happened, and at last chairman sir came to the concluding question of my interview. He said that one last question. I said yes. Then he asked me, okay, there is a question for which I am looking at answer to for last
5, 6, 7 years. Let me see if you can satisfy me. I said, sir, please. Then he asked me, ki, should we eliminate all the superstition in the society? Answer me yes or no. Then I said, sir, no. Then he asked me why. So you want me to say that you are a person who is superstitious? You are not logical. I said, sir, no, sir. I am not saying that. I am a logical person, but I don't think we should eliminate. Then he asked me why. Then I opened my answer like this: that sir, in the Sabrimala judgment, Honorable Supreme Court gave the judgment in favor of women by 4:1 majority. The dissenting judge, Justice Indu Malhotra, gave a very beautiful statement that when it comes to religion, we should keep the logic away because they may not exist together. And then I further explained this answer from my point of view that sir, superstition or religion is something that is very core to the people. Even our constitution recognizes that in Article 26 and 27. And religion does not only appeal to the to the people in general, but it appeals to the conscience of the people. There are many things which we can control by law, but there are many things which we cannot control by law. That is only to be controlled by the conscience, as also said by Mahatma Gandhi ji. And conscience can only be appealed by religion. Otherwise, the world would have been heaven till now. But it's not, because people are not towards that thing. So we should not eliminate. What we can do, and there is also a thing that when it comes to religion, we do not know a place where we can draw a line that yes, this is superstition, this is not a superstition. Because what may be superstition for me may not be for you, and vice versa. So it is a very gray area. We cannot justify that to draw a line. And I think that is something that satisfied him. Then he asked me a follow-up question. Okay, tell me 2 situations when we should eliminate the superstition. Then he gave me an example कि आपने सुना होगा कि एप्पल खाने से बेटा हो जाता है. तो आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशन सोसाइटी में. मैंने बोला yes sir. He said give me 2 situations when you should eliminate it. Contrary to your answer, what you said कि नहीं करना चाहिए. I said sir, first is self harm. When it is leading to self harm. For example, self sacrifice kind of thing which we listen. जैसे लोग कोड़े मारते हैं अपने आप को. वो नहीं करना है. Second thing is sacrificing of others. For example, sati pratha. So I think when it comes to self sacrificing or a harm to broader society, only in those cases we should eliminate the superstition. Otherwise, it is good as long as it is in control. So I think they looked pretty satisfied with that. So I think नाइस भाई. ये हमारे बाबा जी हैं. इनके पैर छू लो भाई. मतलब सीरियसली यार, सी आई थिंक द आइडिया ऑफ आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट टू गेट द राइट आंसर, बट इज टू check the articulation of a person, how much knowledgeable he is and how he is able to express his knowledge, and you did it beautifully. I'm sure you would have got some very good marks in the interview. I would be shocked अगर आपके नंबर 50 से कम हो तो. So well done. I mean, I think मतलब ये इंटरव्यू देख के आपको लग रहा होगा यार कि ये बंदा डिजर्व करता है आरबीआई में जाना, and I'm sure that these kind of people will make difference at RBI sooner or later. Thank you so तो much. I mean, this year I'm not sure. I mean, I see suddenly a rise in the quality of the candidates who are clearing RBI. Well done. Thank you so much. Any last advice that you would like to give to fellow people, because आपने बहुत कुछ झेला है और अब आपने सक्सेस भी पा लिया है, बट यू आर स्टिल वेरी हम्बल. तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगेन द ओपनिंग स्टेटमेंट दैट एवरीथिंग यू फील वर्थ इट, वो सही है. एंड एट लास्ट आई वुड से दैट लाइक देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु हैज अचीव्ड एनीथिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग. आप रोनाल्डो को देखिए, आप मेसी को देखिए, आप विराट कोहली को देखिए. वी सी होल लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर लाइफ. बट वही है कि आपका जो परिश्रम होता है वो प्राइवेट होता है और जो सक्सेस होता है वो पब्लिक होता है. योर पेन इज विल ऑलवेज बी प्राइवेट एंड योर सक्सेस विल ऑलवेज बी पब्लिक. दिस इज जनरल फिलॉसफी ऑफ दिस वर्ल्ड. तो कई मतलब हम उनके ग्लैमरस लाइफ को, उनके सक्सेस को देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया एंड वी से कि काफ़ी किस्मत वाले हैं. ऐसा नहीं है. दे हैव देयर शेयर ऑफ सेक्रीफाइसेस टू, जस्ट दैट दे रियलाइज्ड इट अर्लियर इन देयर लाइफ. वी माइट बी डूइंग इट लेटर. जो स्ट्रगल आपका अभी है, हो सकता है उन्होंने वो स्ट्रगल बचपन से किया हो. बस समय का फ़र्क है. तो देयर इज सर्टेन सेट ऑफ, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, दैट देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ फेलियर्स इन एवरीबॉडीज लाइफ. अगर आप वो जल्दी आपको मिल जाए तो सक्सेस जल्दी मिल जाएगी. फिर अगर उसमें आप लेट करोगे तो आपको वो लेट से मिलेगी सक्सेस भी. तो वो फेलियर का सेट आपको झेलना ही पड़ेगा. वो आप अभी झेलो या लेट से झेलो. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ. आई थिंक जल्दी मिलना बेटर है, क्योंकि उससे काफ़ी अकल आ जाती है. बिल्कुल सर. और जैसा आपने बोला कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो. तो वो बहुत सही है कि सक्सेस स्लो रहेगा, फेलियर जल्दी आएंगे, तो एक करेक्टर बिल्ड होगा जो आपको आपका सक्सेस रिटेन करने में हेल्प करेगा. क्योंकि सक्सेस आना मुश्किल है, लेकिन उसको संभालना और भी मुश्किल है. अगर आप मेरे आंसर देखें सर, तो ऐसा नहीं कि आंसर मैंने कहीं पढ़े या कुछ. इट इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ experiences in life that I have had.
अगर आप सुपरस्टिशन की भी एग्जांपल लो, I come from a place that is very superstitious in that regard. For example, the literacy rate of Jharkhand is not that good. I have been seeing those superstition every day in my life. वो छोटे छोटी क्यों ना हो, but every single day. And I have been realizing this thing कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है. And the main reason is this only. That मतलब वही है कि you have certain set of alignment. Somebody has certain things. अगर आज मुझे देख के कोई लोग बोले कि ये 3 महीने पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल रहा है, I had my share of failures also. वो अलग डोमेन में थे, but थे वो भी failures ही. It had same pain which you will have for this exam. So it's not about in which attempt you make it, in how much month you take it to make it. Ultimately, it's about that you're making it into this exam. That is in itself a big thing. And there are people who have made it before me. There are people who made it with me, and there will be people who will make it after me. So let's try to be one out of them, and let's meet in RBI then. नाइस. बहुत बहुत बढ़िया व्यूज हैं इनके. Thank you so इनके much. इंटरव्यू को मैं बोल रहा हूँ रिवाइंड करिए, दोबारा सुनिए 2-3 बार. इंस्पिरेशन, क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी सब मिलेगा आपको. सो विद दैट वी टेक योर लीव. विश यू बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसमें से जो यू वांट टू इम्प्लीमेंट, कस्टमाइज एंड इम्प्लीमेंट. क्योंकि सुन के कुछ ना करना इज मच वर्स देन इवन ना सुनना. तो कुछ कर लेना भाई. जय हिंद.